Welcome to the class, dear students. You all know that we are right now covering the topics of Unit 3, Module 3, and we are dealing basically with some very important international institutions which helps in conducting the international business effectively and smoothly. In this series, we will deal with another important institution, which is IMF or International Monetary Fund. IMF has been a very, very important institution which has helped globally in smoothing and proper conduction of international business. It has helped developing countries. It has helped in framing of the policies. So it becomes very important for us to understand about the concept of IMF. How does IMF function? Why IMF became so important? Since the beginning, when IMF was institutionalized until now, it has played a very key role, and it is one of the major institutions which has actually helped, or which has played a very important role in international business. There have been many institutions which have actually converted themselves into some other institutions. Their names have been changed, but IMF stood strong, and right from its very beginning, it has played a very, very key role in international business. So let's start with today's lecture. So, yeah, let's begin. Bretton Woods institutions. So what happened? How the IMF came into existence? This is a very important question. International Monetary Fund is a very, very important institution. So we must be aware about the little bit history, how it came into existence. Only then you will be able to appreciate its importance. So there was a time when Second World War took place from 1939 to 1945, and in this duration, the world actually saw a thorough or a total decline in international trade. Industries were shut, developing countries spiraled into negative growth. Developed countries were also seeing a very slow growth or negative growth. The entire globe was facing a serious problem, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिल्कुल ही जीरो हो गया था. तो 1945 में जब एलाइड पावर्स का एक्सेस पावर्स के ऊपर विक्ट्री होती है, एक्सेस पावर वाज रिप्रेजेंटेड बाय जर्मनी, जापान एंड इटली, whereas allied powers were represented by USA, UK, France, and so many other countries. China was also one of the main allied countries, and of course USSR. तो 1945 में जब वॉर खत्म हो रही थी और एलाइड पावर्स विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे थे, तो सभी लोगों ने, सारी एलाइड पावर्स ने और वर्ल्ड के और मेजर कंट्रीज ने ये सोचा कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो कि रीडेवलपमेंट में और दोबारा से वर्ल्ड इकोनॉमी को पाथ ऑफ ग्रोथ पे ले जा सके. ऐसे इंस्टीट्यूशंस हमारे पास होने चाहिए जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के कंसिडरेशन को भी कंसिडर कर सके और डेवलप कंट्रीज के कंसिडरेशन को भी कंसिडर कर सके, क्योंकि सारी इकोनॉमीज ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर 2 के एंड तक.
तो 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म होने से पहले अराउंड 1944 में वर्ल्ड की जो एलाइड पावर्स थी, जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज थी, वो न्यू हैम्पशायर स्टेट यूएसए का है, वहां पे एक ब्रिटन वुड्स करके एक रिजॉर्ट है, एक जगह है जहां पे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई गई। और इस मीटिंग के डिस्कशन के बाद दो मेजर इंस्टीट्यूशंस जो है वर्ल्ड को मिलते हैं। एक है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा है वर्ल्ड बैंक। और इसीलिए इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि ब्रिटन वुड्स एक रिजॉर्ट था, एक जगह थी जहां पे जो है न्यू हैम्पशायर स्टेट में यूएसए के, जहां पे मीटिंग टेक प्लेस करती है, और वहां से दो इंस्टीट्यूशंस का जन्म होता है, एक आईएमएफ और एक वर्ल्ड बैंक, और इन इंस्टीट्यूशंस को ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। तो ये इंस्टीट्यूशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्यों थे मैंने आपको बताया, क्योंकि इन दोनों इंस्टीट्यूशंस की मदद से वर्ल्ड को दोबारा से जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पाथ पे ले जाना था। So in 1944, President Roosevelt of US hosted a conference here to rebuild the world economy after Second World War. Delegates of 44 allied nations had came to participate in this conference. Officially, it was known as United Nations Monetary and Financial Conference, commonly known as Bretton Woods because of the place where it was held. Right? This conference resulted in creation of four important things. सबसे पहला दो तो मैंने आपको बताया ही, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये तो दो इंस्टीट्यूशंस थे मेजर। उसके अलावा तीसरा गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो आगे चल के 1995 में यूरोपीय राउंड्स के कॉन्फ्रेंस के बाद जो है डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत मेजर डेवलपमेंट्स थे, इसीलिए ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस या ब्रिटन वुड इंस्टीट्यूशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका बहुत खास जगह है इंटरनेशनल बिजनेस और ट्रेड में। तो आईएमएफ जो था उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई थी टू गिव शॉर्ट टर्म लोन्स टू हेल्प नेशन सेटल द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है उसका भी हम थोड़ा सा समझेंगे। और आईएमएफ का दूसरा काम था कि they had the special system which was known as SDR, special drawing rights। ये क्या होता है इसको भी हम आईएमएफ में जब क्लियर पढ़ेंगे तो उसको समझ लेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था वर्ल्ड बैंक, इसको आईबीआरडी भी बोला जाता था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एट दैट टाइम। ये लॉन्ग टर्म लोन्स देते थे और सॉफ्ट लोन होते थे। सॉफ्ट लोन मतलब जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता था और पीरियड ऑफ रिपेमेंट भी बहुत लेंदी होता था। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कम इंटरेस्ट पे लोन दिए जाते थे। और जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये फैसिलिटेट करता था इंटरनेशनल ट्रेड को। ये बाद में डब्ल्यूटीओ के फॉर्म में बना। और ये जो है नेक्स्ट आपका जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज थी, ये मैं सही कर देता हूँ जी, एक मिनट बस देखिए। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज थी वो था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी जो है हमको देखने को लिए मिलता है कि ये फोर्थ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आता है। ये सिस्टम 1945 से लेकर 1970 तक जो है एग्जिस्टेंस में रहा और 1970 में इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो इसके भी हम लोग जो है रीजंस देखेंगे क्यों ये क्या ये सिस्टम था और क्यों इस सिस्टम को डिस्कार्ड कर दिया गया। तो ये हम लोग ने देख ही लिया था कौन मेन प्लेयर थे। 44 नेशंस थे पार्टिसिपेट किए थे। यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के जो है
लीडरशिप में ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। यूके के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल उस टाइम में थे। लॉर्ड जॉन मेनार्ड केन्स, जो केन्स थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था इकोनॉमी के रिसर्जेंस के लिए, इवन आफ्टर वर्ल्ड वार 1 एंड आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन। सो ये यूके में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पे थे, तो ये भी मेन प्लेयर थे जिन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया था। इंडिया की तरफ से जो है उस समय किसने पार्टिसिपेट किया था? आप इस बात को भी इमेजिन कर सकते हैं कि इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, 1947 में इंडिया का इंडिपेंडेंस होता है, बट स्टिल उस समय जो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, और उस समय भी हम लोग की एक प्रोविजनल गवर्नेंस इंडिया में जो है इंडियन गवर्नमेंट का था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ओवरऑल रूल था, बट प्रोविंसेस में कुछ जगह पे जो है, बहुत सारी जगह पे इलेक्शंस हुए थे जिससे कि जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में उस समय चल रही थी। तो इंडिया की तरफ से सर सीडी देशमुख इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, और ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। दो इंडिया वाज बीइंग गवर्न्ड बाय ब्रिटिश, बट एज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया साइड सर सीडी देशमुख को जो है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में भेजा गया था। तो बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। कुछ रीजंस तो हम लोगों ने पहले देख लिए हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत गहरा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939, एंडेड इन 1945। लार्ज स्केल बॉम्बिंग्स और डिस्ट्रक्शन हुआ, जिसकी वजह से प्रोडक्शन पूरा डिक्लाइन कर गया। एग्रीकल्चर, डेयरी, मैन्युफैक्चरिंग, सब चीज़ जो है बहुत, सबका जो है बुरा हाल हुआ। दे केम टू स्टैंड स्टिल। जब इकोनॉमी जो है इतनी पुअर स्टेट में हो जाती है तो अल्टीमेटली जो है हर चीज़ के दाम बहुत बढ़ जाते हैं, तो ह्यूज इन्फ्लेशन, स्पायरलिंग इन्फ्लेशन हुआ। तो इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा यही था, हेल्प रीबिल्ड द वर्ल्ड इकोनॉमी, प्रोवाइड मनी, लोन, फाइनेंस टू नीडी नेशंस, और उसके लिए जो है वर्ल्ड बैंक का गठन किया गया। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारी कॉलोनीज के इंडिपेंडेंट होने का जो है एक आइडिया लगने लगा कि बहुत सारी कॉलोनीज जो थी, चाहे वो ब्रिटिश कॉलोनी हो, चाहे फ्रेंच कॉलोनीज हो, जैसे इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी थी तो उसके भी इंडिपेंडेंस होने की पूरी पॉसिबिलिटी थी, बिकॉज ब्रिटिश वर नॉट एबल टू रूल विद आयरन हैंड्स फॉर एनी फर्दर, बिकॉज वो इकोनॉमिकली और मिलिट्रली बहुत वीक हो चुका था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो काफ़ी जो है इस बात का जो है प्रिडिक्शन था कि जो कॉलोनीज हैं वो भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, तो वो अपने तरीके से फंक्शन करने लगेंगी। तो अगर बिग पावर्स का जो एलाइड पावर्स उनका कंट्रोल नहीं रहेगा तो दैट में अफेक्ट देयर पावर ऑल्सो इन फ्यूचर। तो इसलिए उन लोगों ने समय से पहले ही जो है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का, एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस का जो है फॉर्मेशन की बात सोचने लग गए, जिससे कि जो है जब कॉलोनीज फ्री हों तो उनको अपने फोल्ड में लिया जा सके और उनके साथ जो है ट्रेड एंड बिजनेस अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे स्मूथली कंडक्ट किया जा सके। तो ये सारे एजेंडे थे जिसको देखते हुए जो है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, और IMF और WTO जो है मेजर इंस्टीट्यूशंस के तौर पे, और फाइनली गाइड भी आया था और जो कि WTO में कन्वर्ट हो गया था 1995 में। ये 3 मेजर इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड को मिले थे। और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का, वो भी दिया गया था, जो IMF के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाया गया था, जिसके बारे में हम अभी आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हमने देख लिया कब फॉर्मेशन हुआ था, कैसे फॉर्मेशन हुआ था, किन कंडीशंस में फॉर्मेशन हुआ था, उसको क्या मैंडेट दिया गया था। उसके अलावा उसके जो है कुछ फंक्शंस इंपॉर्टेंट थे। सर्वेलांस का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल पे वो इकोनॉमी को देखता है और सर्वे करता रहता है कि कोई कंट्री, किसी भी कंट्री की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस सिचुएशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है, इकोनॉमी वहाँ की कैसे चल रही है, बार बार जो वहाँ की उसको एसेस करना, उसकी रिपोर्टिंग करना, कंट्रीज को और मेंबर्स को अवेयर करना कि आपकी इकोनॉमी जो है किस डायरेक्शन में जा रही है और किस तरीके से उसको जो है राइट डायरेक्शन में लाया जा सकता है। तो रिपोर्टिंग करना, एसेस करना, ये सारा सर्वेलांस का काम जो है IMF का रहता है। हेल्प मेंबर्स इन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, दस हेल्प इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो अगर कोई कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट
क्राइसिस में फंसता है तो उसकी हेल्प करना, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग एडवाइजरी रोल प्रोवाइड करना रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है मेंबर कंट्रीज को देना। एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि मैंने आपसे अभी शेयर किया था कि एक फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वर्ल्ड ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद एग्जिस्टेंस में आया था, जो कि 1970s तक चला था। वो था आपका गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या चीज थी वो अब हम इसको समझते हैं। तो गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या था, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कर दिया गया था कि अगर यूएस के पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड है तो उसके करस्पॉन्डिंग वो उतना अपना डॉलर्स प्रिंट कर सकता है। जैसे यहाँ पे यूएस रिप्रेजेंट किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के पिक्चर से और इंडिया रिप्रेजेंट किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के फोटोग्राफ से। तो अगर यूएस को $1 प्रिंट करना है तो उसके पास रिजर्व में, वहां का जो फेडरल रिजर्व है, वहां का जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, उसके पास 0.88 ग्राम गोल्ड होना चाहिए, राइट। तो अगर 0.88 ग्राम गोल्ड है तो फिर यूएस $1 प्रिंट कर सकता है। अब इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है वो भी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो जितना गोल्ड है उसके करस्पॉन्डिंग जो है यूएस उतना डॉलर प्रिंट कर सकता है, मन मर्जी से नहीं कर सकता है, जितना गोल्ड होगा उसके करस्पॉन्डिंग वो डॉलर्स प्रिंट कर सकता है। तो ये फिक्स्ड हो गया। अब इसको गोल्ड पेगिंग या गोल्ड बैग प्रिंटिंग भी कहा जाता है, ठीक है। सिमिलरली आईएमएफ ने ये भी फिक्स किया कि बाकी सारी कंट्रीज जो हैं वो जो है अपनी करेंसी जो है किस तरीके से प्रिंट कर सकती हैं। तो बाकी सारी करेंसीज को जो है उसने यूएस डॉलर के अगेंस्ट में रेट फिक्सिंग की और उसी के करस्पॉन्डिंग जो है गोल्ड की भी फिक्सिंग हो गई। तो अगर किसी कंट्री के पास, जैसे इंडिया के केस में अगर ₹1 इज इक्वल टू $0.3 है, तो अगर $0.3 को 88 ग्राम्स 0.88 ग्राम से कन्वर्ट किया तो 0.26 आया। तो अगर इंडिया के पास 0.26 ग्राम है तो इंडिया ₹1 पब्लिश कर सकता है। या अगर इंडिया के पास $0.3 हैं तो भी वो ₹1 प्रिंट कर सकता है। तो इंडिया के पास अगर $0.3 हो या इंडिया के पास 0.26 ग्राम गोल्ड हो तो वो ₹1 पब्लिश प्रिंट कर सकता है, राइट। मन मर्जी से प्रिंटिंग अलाउड नहीं थी। गोल्ड के करस्पॉन्डिंग या डॉलर के करस्पॉन्डिंग इंडिया अपनी प्रिंटिंग कर सकता था। अगर इंडिया के पास बिल्कुल गोल्ड नहीं है या इंडिया के पास बिल्कुल भी डॉलर्स नहीं है तो वो प्रिंटिंग नहीं कर सकता। और यूएस के पास अगर गोल्ड नहीं है तो वो डॉलर्स नहीं प्रिंट कर सकता, ठीक है। तो अगर यूएस के पास 100 kgs गोल्ड है तो उसी के करस्पॉन्डिंग वो डॉलर प्रिंट कर सकता है, ठीक है। अब इससे होता क्या था, इससे फायदा ये होता था कि आप जब मन मर्जी के अपने हिसाब से जो है प्रिंटिंग ऑफ रुपीस नहीं कर सकते हैं, केवल जितना आपके पास फिक्स गोल्ड है उसी के हिसाब से आप जो है अपने करेंसी की प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जब फ्लो ऑफ मनी, जब अमाउंट ऑफ मनी आपका फिक्स है तो आपका जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा राइज नहीं करता है। इन्फ्लेशन कब बढ़ता है उसका एक वन ऑफ द मेजर रीजंस होता है, अगर करेंसी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज की डेट में एक पेन ₹10 में मिल रहा है और एज्यूम कीजिए कि आपकी मार्केट में सिर्फ एक पेन है, ठीक है, और 2 लोग हैं, दोनों के पास ₹10 हैं, तो और पूरे मार्केट में एक ही पेन है, तो वो मैक्सिमम जो है वो पेन की प्राइस ₹10 ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 2 लोग हैं मार्केट में और एक पेन है और दोनों के पास ₹10 हैं, उससे ज़्यादा रुपए भी नहीं है उनके पास, तो ₹10 ही जो है उसकी प्राइस होगी। सडनली अगर जो है दोनों को जो है ₹100 या हजार रुपए दिया जाता है और अभी भी मार्केट में जो है वो एक ही पेन है, तो उस पेन की प्राइस ₹10 से
₹1000 तक भी जा सकती है। तो यानी जितनी ज़्यादा नोट्स या जितनी ज़्यादा करेंसी जो है हमारे मार्केट में होगी, या जितना ज़्यादा जो है मनी हमारे सर्कुलेशन में होगा, उतना ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन हो सकता है। तो यहाँ पे जो है जब हमने फिक्स कर दिया है कि जितना गोल्ड होगा आप उतना ही जो है प्रिंट कर सकते हैं मनी, अपनी मनमर्जी के हिसाब से आप प्रिंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो जब आपको प्रिंटिंग अलाउड नहीं है, एक सर्टेन पॉइंट तक ही अलाउड है, तो इन्फ्लेशन भी एक सर्टेन पॉइंट तक ही राइज करेगा, उसके बियॉन्ड वो स्पाइरल नहीं करता। तो इन्फ्लेशन चेक जो है यहाँ पे बहुत इजीली हो जाता था, राइट। तो अब इसके बाद होता क्या था कि ये हो गया हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारा यही गोल्ड पेगिंग या गोल्ड बैक्ड सिस्टम होता था। सिमिलरली ये क्रिस्टीन लगार्डे की फोटोग्राफ है, जो कि आईएमएफ की चीफ रह चुकी थी, अभी तो नहीं है। अभी अर्जेंटीना की इकोनॉमिस्ट हैं, वो जो है करंटली शी इज हेडिंग द आईएमएफ। तो क्रिस्टीन लगार्ड जो है उनसे पहले आईएमएफ की चीफ थी। यहाँ पे फोटो आईएमएफ को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे उनकी फोटोग्राफ लगाई है मैंने। तो आईएमएफ ने गोल्ड बैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। तो गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या था वो आप समझ गए। सिमिलरली आईएमएफ में कॉन्ट्रीब्यूशंस उसके मेंबर कंट्रीज करते थे। जैसे यूएस अगर जो है वहाँ का मेंबर है, आईएमएफ का मेंबर है, तो वो जो है सर्टेन पोर्शन अपना जो है इन टर्म्स ऑफ मनी को कंट्रीब्यूट करेगा आईएमएफ की ट्रेजरी में। सिमिलरली इंडिया अगर मेंबर है तो वो भी कंट्रीब्यूट करेगा, और वो कंट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा उसके कोटा के हिसाब से कि उसको कितना कोटा अलॉटेड है। ये कोटा क्या है वो हम लोग अभी आगे समझेंगे। तो सिमिलरली मेंबर कंट्रीज जो होती थी वो जो है आईएमएफ से बोरो भी कर सकती थी। तो जो डिपॉजिट करता है, जैसे यूएस ने डिपॉजिट किया, इंडिया ने डिपॉजिट किया, तो जैसे आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उसके बदले में आपको जो है इंटरेस्ट मिलता है, और जो लोन लेता है उसको जो है वो इंटरेस्ट रीपेमेंट करना पड़ता है। वो सिस्टम आपके आईएमएफ में भी होता है। तो आईएमएफ अगर जो है डिपॉजिटर है तो डिपॉजिट जो भी पैसे डिपॉजिट करेगा उसी पर्टिकुलर जो है उसके रेशियो में कुछ इंटरेस्ट उसको मिलेगा। और अगर जो है बोरोवर है कोई, तो बोरोवर को जो है इंटरेस्ट ये लोन का चुकाना भी पड़ता है, पे भी करना पड़ता है। तो उस प्रोसेस में जो है आईएमएफ अपना प्रॉफिट मार्जिन उस तरीके से अर्न करता है, राइट। चलिए, तो हम लोगों ने ये चीज देखी कि अभी तक गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या था, राइट। तो गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में हम लोगों ने ये अच्छे से समझ लिया कि जितना गोल्ड है हमारे पास उसी के रेशियो में हम करेंसी प्रिंट कर सकते हैं, उसके आगे हम करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली आईएमएफ ने दूसरी कंट्रीज का डॉलर्स के साथ भी रेशियो फिक्स कर दिया, और ये भी फिक्स कर दिया कि कितने गोल्ड पे जो है दूसरी कंट्रीज भी जो है अपना करेंसी प्रिंट कर सकती हैं। तो ये एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि आईएमएफ ने अपने इंस्टीट्यूशन बनने के बाद जो है उसको इम्प्लीमेंट किया। 1945 के बाद बहुत तेजी से कोल्ड वॉर बढ़ने लग गया। कोल्ड वॉर आपको पता ही है कि यूएसएसआर और यूएस दो पावरफुल कंट्रीज थी, दो न्यूक्लियरली आर्म कंट्रीज थी, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद राइज करती हैं वर्ल्ड फोरम पे। वर्ल्ड वॉर 2 के पहले यूके वाज मोस्ट पावरफुल कंट्री, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखने को मिला कि यूके जो है मिलिट्रीली काफ़ी डाउन हो जाता है, और यूएस और यूएसएसआर जो है मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, न्यूक्लियरली आर्म्ड कंट्रीज वर्ल्ड ग्लोबल फोरम पे आते हैं।
और दोनों ही कंट्रीज जो है, एक यूएस है जो कि जो है आपका फ्री मार्केट इकोनॉमी और लिबरलिज्म इन सब को प्रमोट करता था, जबकि यूएसएसआर एक सोशलिस्ट इकोनॉमी को प्रमोट करता था, कम्युनिस्ट कंट्री था। तो एक तरफ यूएस विच वाज रिप्रेजेंटिंग डेमोक्रेसी एंड यूएसएसआर विच वाज रिप्रेजेंटिंग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो दोनों के बीच में जो है एक कोल्ड वॉर होने लगा। कोल्ड वॉर का मतलब है कि बोथ कंट्रीज वर ट्राइंग टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस ऑन डिफरेंट कंट्रीज टू कम इनटू देयर फोल्ड। तो इस कोल्ड वॉर में कोई मेजर वॉर नहीं होती है, आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, मगर दोनों ही किसी ना किसी तरीके से जो है डिफरेंट कंट्रीज को इन्फ्लुएंस करती हैं कि उनके फोल्ड में आ जाएं, और उसका रिजल्ट ये होता है दोनों उन कंट्रीज को इकोनॉमिकली जो है सपोर्ट करती हैं, उनको आर्म्स से जो है पूरा लैस करती हैं। तो अल्टीमेटली आर्म्स रेस बहुत तेजी से बढ़ने लगा। लार्ज सब्सिडीज जो है वो क्योंकि आर्म्स एक ऐसा चीज होता है जो कि जो है हर कंट्री को रिक्वायरमेंट होती है, तो वो दोनों ही कंट्री जो है आर्म्स प्रोडक्शन करने लग गई बहुत तेजी से, और अपने इन्फ्लुएंस वाले कंट्रीज को जो है सप्लाई करने लग गई चीपर रेट्स पे। डिफेंस सेक्टर को जो है बहुत तेजी से जो है वो लोग प्रमोट करने लग गए, उनको लार्ज सब्सिडीज देने लग गए। जो उनके इन्फ्लुएंस वाली कंट्रीज जो है होती थी उनको पपेट नेशंस बोल दिया जाता था, और उनको जो है ह्यूज डोनेशंस दिए जाते थे। ये काम यूएस से भी कर रहा था, ये काम यूएसएसआर भी कर रहा था। तो उसके लिए होता क्या था कि इन लोग को बहुत सारे पैसे की जरूरत होती थी, बहुत सारे कैश की जरूरत होती थी। मगर आपको पता ही है कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में हम एक सर्टेन लिमिट तक ही कैश प्रिंटिंग कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकते हैं। अब क्योंकि जब इतना कैश जो है मार्केट में जो है होने लग गया, हर प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ने लग गए, डिफेंस सेक्टर में आर्म्स रेस एक तरीके से होने लगी, तो आर्म्स के जब रेट्स बढ़ने लग गए, तो इस टाइम तक देखने मिलने लगा कि लोगों गवर्नमेंट्स की जो प्रायोरिटी, स्पेशली यूएसएसआर की और अलग अलग कंट्रीज की आर्म्स को लेके बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी होने लग गई। डिफरेंट सेक्टर्स में जो है अदर सेक्टर्स में उसका ध्यान कम होने लग गया। तो उसकी वजह से क्या होने लगा कि डिफरेंट सेक्टर्स में डेवलपमेंट कम होने लगा और प्राइसेस भी बहुत राइज होने लग गए। इवन गोल्ड के प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ने लग गए। तो आर्म्स रेस, लार्ज सब्सिडीज, डोनेशन टू द पब्लिक रिजीम्स, इन्फ्लेशन, इसकी वजह से होने क्या लगा कि हमको और यूएसएसआर या यूएसए को प्राइमरली और कैश की जरूरत होने लग गई। ठीक है, ये भी देखा जाने लगा कि यूएस में $1 गोल्ड जो है वो $35 का मिलने लग गया। ठीक है, मगर मार्केट में वही $1 गोल्ड $40 का मिल रहा था। राइट, एक प्रोविजन ये भी होता था सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि रखती थी कि अगर कोई उसको $35 देता है तो उसके बदले में सेंट्रल बैंक उसको $1 गोल्ड देगा। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होता था कि डिफरेंट कंट्रीज जो होती थी या डिफरेंट नेशंस जो होंगे, जैसे इंडिया के केस में मान लीजिए यहाँ इंडिया का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करेगा, $35 निकालेगा अपनी ट्रेजरी से, यूएस ले जाएगा, वहां के फेडरल रिजर्व को देगा और वहां से $1 गोल्ड खरीद लेगा। देखिए जैसे यहाँ पे शो किया जा रहा है, यहाँ से $35 यहाँ से निकाले जाएंगे, ये जो है यूएस को दिया जाएगा और उसके बदले में यहाँ से गोल्ड इंडिया खरीद लेगा, और यही गोल्ड जो है फिर इंडिया मार्केट में बेच देगा और $40 अर्न करेगा। वो फिर से वही साइकिल हो जाएगी और इस तरीके से एक टाइम ऐसा आएगा जो कि यूएस का ट्रेजरी एम्प्टी हो जाएगा। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम की ये बहुत मेजर प्रॉब्लम थी कि जब मार्केट प्राइस जो है बहुत ज़्यादा होने लग गई गोल्ड की और यूएस फेडरल रिजर्व का जो है प्राइस गोल्ड का जो है लो फिक्स होने हुआ था, तो उस टाइम पे जो है वहाँ पे गोल्ड के एम्प्टी होने की और उनके रिजर्व खाली होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ गई, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट में और डॉलर्स वो प्रिंट नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली 1970s में यूएस ने निक्सन के रिजीम में
फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम या गोल्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम को खत्म किया, उसको डिबंक किया और वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरफ बढ़ गया। यानी कि उसका रेट जो है, जैसे 0.88 ग्राम गोल्ड है तो $1 प्रिंट हो सकता है, और इंडिया के साथ जो है, जैसे मैंने यहाँ पीछे दिखाया था आपका, ये जो रेट फिक्सिंग था कि ₹1 इज इक्वल टू $0.3, तो ये सिस्टम जो है फाइनली एंड होता है, और मार्केट जिस हिसाब से डिसाइड करेगी कि डॉलर्स की ज़्यादा जो है डिमांड है कि रुपीस की ज़्यादा डिमांड है, उस हिसाब से एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरफ यूएस मूव कर गया। इंडिया को भी टाइम लगा इस कॉन्सेप्ट को समझने में, और फाइनली जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ इंडिया में 1990s के टाइम पे, और फिर फाइनली जो है मनमोहन सिंह एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, जब फाइनली हम लोग न्यू लिबरलाइजेशन पॉलिसी की तरफ बढ़े, तो 1992 में भी इंडिया फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को ख़त्म करके फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरफ बढ़ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे 1944 से 1970s तक ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस का फॉर्मेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन होता है। आईएमएफ के क्या काम होते हैं, आईएमएफ का जो आईएमएफ का जो है एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन था जो उसने इंट्रोड्यूस किया था, वो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का, वो कैसे जो है उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, उसमें क्या फ़ायदे थे, मगर फाइनली जो है 1970s में स्टार्टिंग में यूएस ने उसको हटा दिया अपने सिस्टम से, और वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरफ चला गया, और इंडिया भी फाइनली जो है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को छोड़ के 1992 में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम की तरफ चला गया। फाइनली आईएमएफ ने भी इस सिस्टम को जो है मतलब ख़त्म कर दिया अपने सिस्टम से, और अब वो आईएमएफ भी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को ही या मार्केट बेस्ड सिस्टम को ही प्रमोट करता है। तो आगे लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आईएमएफ में जो एसडीआर होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, वो कैसे फिक्स होता है, उसमें क्या वेटेज होता है, किस कंट्री का कितना वेटेज होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और क्या क्या रिफॉर्म्स आगे आईएमएफ में आए, और कैसे जो है आईएमएफ की फंक्शनिंग होती है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।